مسلمانوں، اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے آپسی جھگڑے ختم ہو جائیں، اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہمارا مقام بلند ہو جائے، اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری نیکیوں میں بڑھوتری ہو جائے، کل قیامت کے دن ہمارا میزان عمل سب سے زیادہ باوزنی ہو جائے، تو پھر ان تمام چیزوں کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو حسن اخلاق سے آراستہ کر لیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج۔ حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی سب اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ جس نے صرف 6 دنوں کے اندر آسمان و زمین کو پیدا کیا، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرما کے فرشتوں سے آپ کا سجدہ کروایا، اور ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات کا خطاب عطا فرمایا، اور ہمیں اس دنیا کے اندر بھیج کر کے یوں ہی بلا مقصد کے نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے اس دنیا کے اندر انبیاء کرام کا ایک سلسلہ جاری کیا۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب عربی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کی بے پناہ محنتوں اور مشقتوں کے بعد دین اسلام صحابہ کرام تابعین اعظام اور پھر تبع تابعین کے واسطے سے ہم تک اپنی اصل شکل و صورت میں پہنچا۔ سامعین کرام، اس تارے پانی کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، اور ہر نبی کے ساتھ ایک آفاقی دین نازل کیا گیا، مگر ہر دین میں کچھ نہ کچھ کمی رہی، جسے پورا کرنے کے لیے ایک کے بعد دیگر انبیاء کرام مبعوث ہوتے رہے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد پیغمبر ہیں جنہیں ایک مکمل دین دے کر اس تارے پانی کے اندر مبعوث کیا گیا، کیونکہ آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں تھا۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی
वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया, तुम पर अपनी नेमतें तमाम कर दी और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम से राज़ी हो गया। सामीन किराम, दीन इस्लाम ही वो अकेला मजहब है जो ज़िंदगी के हर शोबे में इंसान की रहनुमाई करता है। इसके अंदर इंसान के पैदा होने से लेकर मरने तक के उम्र ज़िंदगी के तमाम मसाइल को बयान कर दिया गया है। आदमी लोगों से बात कैसे करे, उसके आदत व अतवार कैसे होने चाहिए, उसका अखलाक कैसा होना चाहिए, रिश्तेदारों, पड़ोसियों, हमसायों, दोस्तों, अहबाब के साथ उसके मेल मिलाप कैसे होने चाहिए, उनका किरदार कैसा होना चाहिए, उनका अखलाक कैसा होना चाहिए, इन तमाम चीज़ों को इस्लाम ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया है। और किसी चीज़ को अपनाने से एक आदमी उसने अखलाक से आरास्ता होता है, अच्छे अखलाक वाला बनता है। लफ्ज़ अखलाक ये दरअसल अरबी ज़बान का एक लफ्ज़ है जो कि खुल्क की जमा है, जिसके उर्दू माना होते हैं आदत और खसलत के। यानी अखलाक एक ऐसी आदत है जो इंसान के किरदार को मजबूती से जकड़ लेती है। अब अगर यही आदतें अच्छी हैं, शरीयत के मुताबिक हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की पसंदीदा हैं, तो फिर इन्हीं को अखलाक हसना कहा जाता है, जिसे हम अच्छी आदत और अच्छी खसलत कहते हैं। लेकिन अगर यही आदतें बुरी हैं, शरीयत के खिलाफ हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के मुतज़ाद हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नापसंदीदा है, तो दरअसल यही बदखुल्की है जिसे हम बुरी आदत और बुरी खसलत कहते हैं। और सामीन किराम, ये आदतें, इंसान की आदतें, ये बहुत ही अहमियत की हामिल है, क्योंकि यही वो आदतें हैं जिसके ज़रिए से समाज और माशरे में एक इंसान अच्छे या बुरे होने की हैसियत से जाना और पहचाना जाता है। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज मुसलमान इसी अखलाकी बुराई के शिकार हैं, अखलाकी बिगाड़ के शिकार हैं। बेदीनी, बेमुरव्वती, बेगैरती, बददयानती आज मुसलमानों के अंदर आम हो चुकी है। बद अखलाकी के एक ऐसे अमीर कार में गिरते जा रहे हैं जहाँ से निकलना मुसलमानों के लिए बिल्कुल दुश्वार और मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि अगर हम कुरान करीम की तिलावत करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आज हम मुसलमान जिस नबी का दम भरते हैं, जिसको मानते हैं, जिस नबी के मानने का दम भरते हैं, वो नबी वो थे कि जिनके अखलाक की गवाही खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर दे दिया। कुरान करीम के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाता है, नून वल क़लमि वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। नून ये हुरूफ़ मुक़त्तआत में से है। वल क़लमि वमा यस्तुरून, कसम है कलम की जिससे वो लिखते हैं। मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल करम से पागल और दीवाने नहीं है। व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून, और आपके लिए ना खत्म होने वाला अजर है। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, और आप अखलाक के बुलंद मर्तबे पर फाइज हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन आयत करीमा के अंदर सबसे पहले कसम खाई कलम की, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जब किसी चीज की कसम खाता है तो उसकी असमत बढ़ जाती है, और किसी चीज की कसम खाने के बाद अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन कोई चीज इरशाद फरमाता है तो उसकी आसमत भी दोबाला हो जाती है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलम की कसम खाने के बाद कहा, यह लोगों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के अजीम मर्तबे पर फाइज है। लिहाजा होना तो ये चाहिए था कि हम मुसलमान भी अपनी नबी की तरह अखलाक की बुलंदियों पर फाइज होते, अपने नबी की तरह अखलाक से आरास्ता होते, अपने नबी की तरह अपने आप को हुस्न अखलाक से आरास्ता और बेरास्ता करते। मगर हमने इन तमाम चीजों को फरामोश करके बदखुल्की को अपना लिया है, अपने अखलाक को बिगाड़ लिया है। अखलाक की ऐसी गिरती हुई खाई में जा चुके हैं जहाँ से निकलना हमारे लिए दुश्वार और मुश्किल तरीन होता जा रहा है। सवाल पैदा होता है कि आखिर एक मुसलमान अपने आप को हुस्न अखलाक से आरास्ता कैसे कर सकता है? तो इसका जवाब भी हमें हदीस करीमा के अंदर मिलती है। सहाबे किराम हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के मुतालिक सवाल करते हैं, कैफ़ कान खुल्क़ु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा था। चुनांचे हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बड़ी खूबसूरत जवाब दिया। आपने कहा, कान खुल्क़ुहुल कुरान, कि आपका अखलाक
सरापा कुरान था, आपका उठना कुरान के मुताबिक था, आपका बैठना कुरान के मुताबिक था, आपका जागना कुरान के मुताबिक था, आपका सोना कुरान के मुताबिक था। गर्ज ये कि आपकी पूरी जिंदगी कुरान की अमली तफसीर थी। लिहाजा आज के दिन अगर कोई मुसलमान उसने अखलाक से आरास्ता होना चाहता है, अपने आप को उसने अखलाक से आरास्ता करना चाहता है, तो उसको चाहिए कि कुरान की तालीमात पर अमल करे, कुरान की तालीमात को अपनी जिंदगियों के अंदर नाफिज करे। अगर वो ऐसा करेगा तो ऐसा करके वो हुस्न अखलाक से अपने आप को आरास्ता पैरास्ता कर सकता है। और जब अखलाक की बुलंदी, ये बुलंद पाया मकाम हमारे अंदर पैदा हो जाएगा तो फिर हमें किसी और की खुशामद करने की जरूरत नहीं होगी, हमें किसी और की चापलूसी करने की जरूरत नहीं होगी। लोगों की नजरों में महबूब बनने के लिए, लोगों की नजरों में अच्छा बनने के लिए हमें किसी किस्म के दिखलावे की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको खुद ही लोगों की नजरों में महबूब बना देगा। इसी वजह से अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इन्ना मिन खियारिकुम अहसनुकुम अखलाका, कि तुम में बेहतर वो है जिसका अखलाक बेहतर हो। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम में से उस शख्स को बेहतर करार दिया जो हुस्न अखलाक से आरास्ता होता है, जिसका अखलाक अच्छा है, जिसका अखलाक बुलंद मकाम पर फायज है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के अच्छे होने का मेयार उसकी ईमानदारी को नहीं बतलाया, किसी के अच्छे होने का मेयार उसकी तहारत को नहीं बतलाया, किसी के अच्छे होने की मेयार उसकी नमाज और रोजे को नहीं बतलाया। क्यों? क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो नमाज पढ़ते होंगे लेकिन नमाज से फारिग होने के बाद गाली गलौज करते होंगे। आपने बहुत सारे मालदार लोगों को देखा होगा जो गरीबों पर जुल्म सितम करते होंगे। आपने बहुत सारे हज करने वालों को देखा होगा जो लोगों के साथ झगड़े और लड़ाइयां करते होंगे। आपने बहुत सारे रोजा रखने वालों को देखा होगा जो झूठ बोलते होंगे। लिहाजा आप गौर करिए ये लोग लोगों की नजरों में आखिर अच्छा कैसे बन सकते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी ने कहा, अगर तुम्हारा अखलाक बेहतर है, तुम्हारा अखलाक आला तरीन मर्तबे पर फायज है, अगर तुम्हारा किरदार अच्छा है, तुम्हारे अंदर लोगों से बात करने की तमीज है, और अगर तुम्हारे अंदर हया पाई जाती है, हट धर्मी नहीं पाई जाती, तकब्बुर और घमंड नहीं पाया जाता, तो फिर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर में भी महबूब हो और अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों की नजरों में भी तुम्हें महबूब बना देगा। और इस हुस्न अखलाक का फायदा क्या है? अगर कोई शख्स अपने आप को हुस्न अखलाक से आरास्ता कर लेता है तो आखिर उससे उसको क्या फायदा हासिल हो सकता है, इसकी भी वजाहत बहुत सारी अहादीस करीमा के अंदर मिल जाती है। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मा मिन शैइन अथक़ल फिल मीज़ान मिन हुस्निल खुल्क़, कि मोमिन के मीज़ान अमल में हुस्न अखलाक से ज्यादा बावज़नी कोई चीज नहीं होगा। यानी कल क़यामत के दिन जब लोगों के अमाल को तौला जाएगा तो उन अमाल में सबसे ज्यादा बावज़नी चीज जो होगा वो लोगों का अखलाक होगा, लोगों का किरदार होगा, लोगों के अच्छे अखलाक व आदात होंगे। लिहाजा अल्लाह के नबी ने यह तालीम दी है कि हम और आप हुस्न अखलाक से आरास्ता हो, हुस्न अखलाक से पैरास्ता हो, अपने आप को हुस्न अखलाक के आला तरीन मरातिब पर फाइज करें, ताकि क़यामत के दिन जब मीज़ान अमल कायम किया जाए तो मीज़ान अमल में हमारे आमाल नामा सबसे ज्यादा वज़नी हो सके। इसी तरीके से अगर कोई शख्स हुस्न अखलाक से आरास्ता होता है तो वो पूरी रात नमाज पढ़ने वाले और पूरी दिन रोजा रखने वाले का मर्तबा हासिल कर सकता है। आप जरा गौर कीजिए कि एक आदमी है जो पूरी रात अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करता है, पूरी रात जागता है, अपनी नींदों को कुर्बान करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में रोता है, गिड़गिड़ाता है, और एक दूसरा शख्स है जो दिन भर भूखे और प्यासा रहता है, भूख और प्यास की हालत में निढाल होने के बावजूद भी कुछ खाता और पीता नहीं है। यह शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक कितने महबूब और पसंदीदा लोग हैं। मगर वहीं पर एक दूसरा शख्स जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को हुस्न अखलाक से आरास्ता कर लेता है, लोगों से अच्छे तरीके से बातें करता है, लोगों को गालियां नहीं देता, झगड़े नहीं करता, इतना फसाद नहीं करता, वो ऐसा शख्स उन लोगों का मर्तबा हासिल कर सकता है जो रात भर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी करते हैं और दिन में रोजे रखकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत और बंदगी सर अंजाम देते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा इरशाद फरमाती हैं, इन्नल मुमिना लयुदरिका बिहुस्नि खुलुक़िही दरजतल क़ाइम वस्साइम, यकीनन मोमिन आदमी अपने हुस्न अखलाक के जरिए से दरजतल क़ाइम वस्साइम, पूरी रात तहज्जुद पढ़ने वाले
और पूरे दिन रोजा रखने वाले का मर्तबा हासिल कर सकता है। तो सोचिए, गौर कीजिए कि हुस्न अखलाक की कितनी बड़ी अहमियत है, कितनी बड़ी फजीलत है कि अगर आदमी सिर्फ अपने आप को हुस्न अखलाक से आरास्ता करता है तो उसके मीज़ान अमल में सबसे बावसीन चीज हो जाती है। और अगर कोई शख्स अपने आप को हुस्न अखलाक से आरास्ता करता है तो फिर रोजेदार का मर्तबा हासिल करता है, तहज्जुद गुजार का मर्तबा हासिल करता है। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुस्न अखलाक को नेकी करार देते हुए उसको अपनाने की तलकीन की है। चुनाचे अन नवाज बिन समान रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल सअलतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल बिर्रि वल इस्म फ़क़ाल अल बिर्रु हुस्नुल खुल्क़ वल इस्मु मा हाका फ़ी सदरिका व करिहता अन यत्तलिअ अलैहि अन्नास। हज़रत नवाज बिन समान रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नेकी और बुराई के बारे में सवाल किया, नेकी और बुराई के बारे में सवाल किया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अल बिर्रु हुस्नुल खुल्क़, नेकी ये है कि आदमी अपने आप को हुस्न अखलाक से आरास्ता कर ले। यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब नेकी के बारे में सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को नहीं बतलाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे को नहीं बतलाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात को नहीं बतलाया, हज को नहीं बतलाया, कुरान करीम की तिलावत को नहीं बतलाया। अगर बतलाया तो क्या हुस्न अखलाक से आरास्ता होना बतलाया कि अगर कोई शख्स अपने आप को हुस्न अखलाक से आरास्ता करता है तो दरअसल वो नेकियां कर रहा होता है। वल इस्मु मा हाका फ़ी सदरिका व करिहता अन यत्तलिअ अलैहि अन्नास, और गुनाह ये है जो तुम्हारे दिल में खटके और तुम इस बात को नापसंद करो कि लोग उस बारे में जान सके। यानी अगर आदमी किसी बारे में मशकूक होता है, किसी चीज के बारे में उसको शक है कि आया ये चीज गुनाह है या नहीं है, तो फिर उसको इस चीज के जरिए से पता लगा लेनी चाहिए कि क्या ये काम करते हुए उसके दिल में कोई खटका पैदा होता है और क्या वो ये सोचता है कि काश मैं जो ये काम कर रहा हूँ कोई और न देखता तो कितना अच्छा होता। अगर ये ख्याल एक आदमी के दिलों के अंदर पैदा होता है तो ये समझ लेना चाहिए कि जो वो काम कर रहा है वो एक गुनाह का काम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी है, रसूल के फरामीन के अहकामात के खिलाफ बगावत है। लिहाजा हमें और आपको उस काम से रुक जाना चाहिए। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह तालीम दी कि अगर कोई नेकी करना चाहता है तो उसको चाहिए कि वो हुस्न अखलाक से अपने आप को आरास्ता कर ले, हुस्न अखलाक से अपने आप को आरास्ता कर ले। और इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी बिअसत का जो मकसद बतलाया वो हुस्न अखलाक को करार दिया। चुनाचे अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, कि मैं इस दुनिया के अंदर इसलिए भेजा गया हूँ ताकि मैं मकारिम अखलाक की तकमील करूँ, ताकि मैं हुस्न अखलाक से लोगों को आरास्ता करूँ, ताकि मैं लोगों को बतलाऊँ कि हुस्न अखलाक का फायदा क्या है, उसकी फजीलत क्या है, उसकी अहमियत क्या है। लिहाजा ऐ मुसलमानों, अगर हम और आप चाहते हैं कि हमारे आपसी झगड़े खत्म हो जाएं, अगर हम और आप चाहते हैं कि दुनिया के अंदर हमारा मकाम बुलंद हो जाए, अगर हम और आप चाहते हैं कि हमारी नेकियों में बढ़ोतरी हो जाए, कल क़यामत के दिन हमारा मीज़ान अमल सबसे ज्यादा बावसीनी हो जाए, तो फिर इन तमाम चीजों के लिए हमें चाहिए ये कि हम अपने आप को हुस्न अखलाक से आरास्ता कर ले, अपने आप को हुस्न अखलाक से पैरास्ता कर ले। और हमें करना भी ये चाहिए था, क्योंकि हमारे नबी वो हैं जिन्होंने अपने आप को हुस्न अखलाक से आरास्ता किया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया की सबसे असीम तरीन किताब के अंदर आपके हुस्न अखलाक की गवाही दी और कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के आला तरीन मर्तबे पर फाइज है। लिहाजा हम और आप उसी नबी के उम्मती हैं, उसी नबी के मानने वाले हैं। लिहाजा हमें भी अपने दिलों के अंदर, अपने आप के अंदर हुस्न अखलाक को पैदा करना चाहिए, अपने आप को हुस्न अखलाक से आरास्ता और पैरास्ता करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो कि अल्लाह आलमीन तो हम मुसलमानों को हुस्न अखलाक से आरास्ता होने की तौफीक अता फरमा, हम मुसलमानों को नेक काम करने की तौफीक अता फरमा, हमें गुनाहों से महफूज फरमा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो मुसलमान भाई परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर कर दे, जो मुसलमान भाई कर्जदार हैं अल्लाह उनके कर्ज की अदायगी की कोई सबील पैदा कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक हमें इस दुनिया के अंदर जिंदा रख, ईमान और इस्लाम पर जिंदा रख, और जब हमारा खात्मा हो ईमान और इस्लाम पर हो। आमीन। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।